Hello dear students, welcome back to the channel Zag Economics. So we have studied the two methods of calculating national income. The first method was value added method, in which we sum up the final production in the economy, or the value additions in the economy. Number two method was income generation method or income method, in which we sum up all the factors income within the economy and then give out the final result of national income. And the third method now we are going to study is we are going to sum up all the expenditures of the economy. यानी जितने खर्चे हैं, अगर इकोनॉमी के सारे खर्चे को टोटल कर लिया जाए, सर कैसे आप कह सकते हैं कि खर्चों को टोटल करेंगे तो नेशनल इनकम मिलेगी? सिंपली फ्रॉम द ट्रिपल आइडेंटिटी यू कैन सी हियर कि जो इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी ही इनकम जनरेशन हुई है, और जब इनकम जनरेट हो गई, लोगों के पास फैक्टर इनकम आ गई, सो नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट टू डिस्पोज देयर इनकम बाय डूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. तो जो इनकम है वो क्या होगी? खर्च होगी. तो दैट इज वाई द नेक्स्ट मेथड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एक्सपेंडिचर मेथड. In this expenditure method, we are going to understand various types of expenditure which are occurring in the economy by different sectors of the economy. Okay, so let's see the expenditure method. Now, expenditure method, it is also known as consumption method, investment method, या income disposable method. Okay, any of the following name come, you have to do or you have to work out with expenditure method only. Now, in this method, what we do, what all total expenditures occurring or incurring in the economy, will just total it up, sum it up. Okay. Now, what are the final expenditures? Let us classify them. So basically the classification of final expenditure depends on the sectors, various sectors of the economy. So we have four major sectors in the economy. Let me tell you one by one. The first sector is, as we all know, the household sector. Then we have the second sector, that is government sector. Then we have the third sector, that is producer sector. And then we have the fourth sector, that is rest of the world sector, or we can say foreign sector. So these are the four sectors mainly in the economy. All the expenditures are done by these sectors only. So what are the final expenditure done by household, government, producer, or rest of the world? We'll see one by one. Okay. So the household sector does the expenditure for its consumption purpose, for consuming the goods. So his expenditure is known as private final consumption expenditure. Don't worry, we'll discuss each expenditure in detail. Okay. तो हाउस होल्ड जो है करता है क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज आवर गवर्नमेंट. नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो डज expenditures on various things. So their expenditure is called government final consumption expenditure. So household does the consumption expenditure, government does the consumption expenditure, producer also does the consumption expenditure, but that consumption expenditure is not for the consumption purpose but for the investment purpose. So it is called investment expenditure, because producer always put the money with expected returns over it. That's why it is called investment expenditure. And the last, rest of the world sector, when I talk, so our relation with rest of the world is based on exports and imports. So that is net exports will take. Okay. So if we add up all the expenditures in the economy, what we get
sum total of expenditure on the domestically produced goods and services during an accounting year. I repeat, we are going to add up all the expenditures in the economy. So, sum total of expenditure, I've written it here, done by various sectors on domestically produced goods and services during an accounting year within domestic territory is called GDP-MP. So, when you total up private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus investment expenditure and plus net exports, what you get the result is GDP-MP. तो अगर GDP-MP मिल गया, now simply you got GDP-MP. Where you have to go? You have to go to NNPFC, that is national income. You can easily form it. So this is all about the expenditure method. Okay. Now we'll discuss one by one each expenditure. That is, first is private final consumption expenditure. Okay. Now, private final consumption expenditure, as I have already told you about the when we have studied the topic consumption expenditure in the chapter 2 and what are the components of consumption expenditure. So, in that we have studied that all the consumption expenditure done by households and non-profit institutions, private institutions over goods and services in the economy is totally called private final consumption expenditure. Now, these expenditures are like expenditure done on consumer service, then expenditure done on various types of durable and non-durable goods, expenditure done on expenditure done by the non-profit private institutions. So these are the main points under private final consumption expenditure, and make sure that this point it will be given directly in क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया रहेगा, कोई भी चीज़ उसमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं है. यू ओनली हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट्स इट. नंबर 2 इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब कंट्री के अंदर वी हैव आवर ओन गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट विल ऑल्सो डू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, like government will purchase goods for midday meal scheme, for defense personnel, etc. Okay, so this is these are the government final expenditure, and this will also be given in the question. You will get directly in the question, you don't have to find it out. Okay, so two things you have got directly, that is first is private final consumption expenditure जो हाउस होल्ड करते हैं, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कंट्री की गवर्नमेंट करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर? प्रोड्यूसर करता है. ठीक, तो इट इज सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट done by all producers in the economy. तो जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके थ्रू, वी टेक दैट अंडर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
कोई भी प्रोड्यूसर होगा तो प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड चीज़ों पर, फिक्स्ड एसेट्स पे, तो उसे हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, उसे बिजनेस करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो इन्वेस्ट करता है इन्वेंट्री के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जैसे वो इन्वेस्टमेंट जिसको हमने प्लांट पे, मशीनरी पे, इन सब चीज़ों पे किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट को हम जानते हैं जिस नाम से, उसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। तो अब आप इन्वेस्टमेंट कहिए या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहिए, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। अब नाम से इसी पता चल रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक्चुअल जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्री। और कैपिटल फॉर्म कैसे होता है, कैपिटल इज ओनली फॉर्म व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डन, ओके। और वो दो टाइप का होता है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम और क्या कहते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपकी होती है इन्वेस्टमेंट डन ऑन द स्टॉक। तो जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक पे की जाती है उसको सिंपली निकालने के लिए व्हाट विल डू, दैट इज द सिंपली थिंग इज चेंज इन स्टॉक। जो कैसे निकलता था आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक, वही पुरानी बात है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक के ऊपर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब, आई राइट द करेक्ट नेम ऑफ इट, यू कैन राइट द वर्ड डोमेस्टिक बिकॉज विद इन द इकोनॉमी हो रहा है, ठीक। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम और क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेस्टमेंट को हम सिर्फ क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। अच्छा, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है दैट आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। व्हाट आर दोज थ्री, आई टेल यू वन बाय वन। पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर वो है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नंबर टू इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड नंबर थ्री इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जब जो इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स फिक्स्ड एसेट इन ऑर्डर टू डू द बिजनेस, ओके। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमी के अंदर होती है, जो बेस्ड होती है टू प्रोवाइड रेजिडेंस टू द जनरल पीपल। जैसे रेजिडेंस प्रोवाइड करने के लिए वी बिल्ड वेरियस फ्लैट्स, ओके, वी बिल्ड हाउसेज, रेजिडेंशियल हाउसेज, ओके। सो दीज आर ऑल कॉल्ड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। और जो थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर होती है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो करती है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, गवर्नमेंट जो है आपके डैम्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, ठीक है, रोड्स बनाती है। दीज आर ऑल कॉल्ड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट किस पे, इन्वेस्टमेंट डन ऑन बिल्डिंग हाउसेस, फ्लैट्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ठीक। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है बेसिकली, ठीक है, जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर जो फिक्स नेचर ऑफ बिजनेस, फिक्स नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो थ्री टाइप्स में है। पहली बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप बिजनेस के अंदर करते हो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप हाउसेज और फ्लैट्स रेजिडेंशियल एरिया बिल्ड करने के लिए करते हो। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट करती है इन ऑर्डर टू बिल्ड
dams, roads, bridges for the public. So these are all the investments under the gross domestic fixed capital formation. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है आपको, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नो प्रॉब्लम, ओके, यू कैन इजीली टेक दैट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, or you can say investment expenditure. But if this is not given, then you will be given fixed investment, that is gross domestic fixed capital formation, and inventory investment, that is change in stock. So what you will do, you will add both fixed investment and inventory investment, you will get the gross domestic capital formation. Okay, so I'll tell you the errors or possibilities where what all will come under the investment expenditure point. Okay, so gross domestic fixed capital, gross domestic capital formation, जिसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉर यू हैव टू फाइंड आउट दैट इफ इन द क्वेश्चन if it is given gross domestic fixed capital formation or change in stock, you will just add both and you will get this value, and this is finally called investment expenditure, a main important component of this method. ठीक है, अब मान ली कभी कभी आपको क्वेश्चन में GDCF नहीं देकर वो दे देंगे आपको NDCF, सो नो नीड टू वरी, ठीक, आपको GDCF यहाँ पुट करना है, ठीक, तो NDCF आपको दे दिया है और आपको GDCF चाहिए, ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GDCF, जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक, सिंपली यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू वांट GDCF, व्हाट इज गिवन NDCF, तो नेट से आपको किस पे जाना है, ग्रॉस पे जाना है, ठीक है, तो नेट से अगेन ग्रॉस पे जाना है, यू विल डू प्लस डेप्रिसिएशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, इट कैन बी गिवन विद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ओके, सिंपल, तो यू विल गेट GDCF अगेन, you don't have to do much for that if NDCF is given. तो ये पहली प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन के अंदर. सेकंड प्रॉब्लम कभी कभी ये आती है कि जो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, ये ना देकर वो दे देगा आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इस वाले कंपोनेंट में प्रॉब्लम कर सकता है. ओके, तो इसमें जो है आपको अगर वो देता है क्या, आई राइट इट हियर, वो आपको दे रहा है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है. अब अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू नीड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपली नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, you will add up depreciation, again you will get gross domestic fixed capital formation. Okay, अब आफ्टर गेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हो, यू विल ऐड वन मोर थिंग इन दिस, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक. तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, अगेन यू विल रीच टू दिस पॉइंट, दैट इज GDCF, सिंपल. ओके, तो ये दो कंडीशंस कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती हैं, सो डोंट हैव टू वरी. अगर नेट वैल्यू दी हुई है कोई बात नहीं, ग्रॉस वैल्यू आपको चाहिए, यू विल ऐड अप डेप्रिसिएशन इन बोथ ऑफ द केसेस. ओके, चाहे वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो. ओके, सो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस नाउ. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंसेप्ट. नाउ विल स्टडी द लास्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है जो कंट्री का ट्रांजेक्शन होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक. अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ व्हाट वी विल डू, आइदर वी विल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट. ओके, सो व्हाट ऑल एक्सपेंडिचर इज डन ऑन दिस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी विल सम इट अप अंडर नेट एक्सपोर्ट्स कैटेगरी. ओके, so it is the sum total of expenditure done on export and import with rest of the world. Now I'll tell you one more thing here.
Why it is export minus import? Because the expenditure on exports, that is denoted by X, is greater than expenditure on imports. That's why we say net exports. But sometimes in question it is given net imports. So what we do, अगर net exports दिया हुआ है we add up, okay? अगर net imports दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री के अंदर जो imports पे खर्चे हुए हैं that is more than the export. So net imports और इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है? So this is one of the problem which sometimes arise when you solve the question. तो ये नेट इम्पोर्ट्स वाला केस हो गया. नेट इम्पोर्ट्स अगर दिया है तो डायरेक्टली यू विल माइनस इट, यू विल नॉट ऐड इट. नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे, ओके? अच्छा, अब नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ये क्या है? सो आई टेल यू. जो एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर डन बाय फॉरेनर्स टू expenditure done by foreigners to export domestically produced final goods and सर्विसेज, ठीक? यानी जो भी खर्चा बाहर के लोग करते हैं हमारी इकोनॉमी से डोमेस्टिकली, जो हमारे यहाँ के प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको ले जाने में, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स. वहीं मैं अगर इंपोर्ट्स की बात करूँ तो जस्ट वाइसा वर्सा हो जाएगा. तो इंपोर्ट्स का मतलब यहाँ पे वो खर्चा जो हमने किया कहीं से भी गुड्स और सर्विसेज, अब्रॉड से गुड्स और सर्विसेज को अपनी इकोनॉमी में लाने के लिए. सो दैट इज कॉल्ड द इम्पोर्ट थिंग, ओके? तो एक्सपोर्ट माइनस import when will get the net export point, okay? Simple. So these are the 4 types of expenditures which we discuss, and when we add up all these kinds of expenditure we'll get, now we'll summarize it very fast. We'll get GDP MP, as I have told you. What all things will add up? Private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus investment expenditure and plus net exports, okay? When we'll add up we'll get GDP MP, and what we have to find out, we have to find out NNP FC. We have got GDP MP. Now we'll frame the formula. It is very simple. ग्रॉस से जाना है किस पे? नेट पे. व्हाट विल डू? माइनस डेप्रिसिएशन. देन डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एन फीफा. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट. तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके? So we'll get national income like this. So this is whole of the expenditure method. I hope you like the video. Let me focus it. Okay. So this is the last topic of the chapter. We have completed this chapter, methods of calculating national income. I hope you like this video. Press the bell icon for further updates. Click the like button. Thank you, class.